Jai Hind, dear students. I'm your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and we are discussing the chapter acids, bases, and salts. And here now we have came to the last part of the chapter, and we will be discussing about two compounds, that is washing soda and plaster of Paris. बट स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग कि मैम मज़ा नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया, कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं देखे. So we would like to see some experiments and then only we are going to continue with our studies. जब तक experiments नहीं दिखाओगे आगे continue नहीं करेंगे chemistry पढ़ना. Okay, so here we are with an experiment and then I'll continue with the explanation. So let's first have a look at this experiment. I have taken copper sulfate in this test tube. Copper sulfate crystals are blue in color and it has 5 water molecules as water of crystallization. Now when we heat copper sulfate, then this water molecules are going to get removed from that and you will observe the change. The copper sulfate is slowly getting colorless because of removal of water molecules. You can see some water droplets forming over the test tube. I hope that's visible, that the water droplets are formed on the upper surface of the test tube, and slowly the blue color is changing, it's getting colorless. So you can see that the blue color has disappeared because of the removal of water from it. But now if I add some water to it, then it will again turn into blue color. I'll just show it to you. I'll add some water to it. You can see that again it turns blue in color when water is added to it. So you have seen what is water of crystallization. Now I'll explain this topic to you all. Water of crystallization. Some salts appear to be completely dry. Like in this test tube, I have taken copper sulfate crystals and that were completely dry. मैंने जब उनको उठाया हाथ में तो वो बिल्कुल ड्राई थे, थोड़ा सा भी मॉइस्चर उसमें नहीं था. But still, every molecule of copper sulfate is having CuSO4.5H2O. This 5H2O represents the water of crystallization. जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में से ऑटोमेटिकली वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं. दे आर गोइंग टू अब्जॉर्ब अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर ओनली. ये ना तो 4 ना ही 6 होगा. दैट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर दैट दीज कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर गोइंग टू अब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर. और इसलिए कॉपर सल्फेट के ये क्रिस्टल्स कम्प्लीटली ड्राई हैं, but still they are having a content of water in it. जब इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हमने हीट किया तो ये डीकलराइज हो गई, मतलब इसका ब्लू कलर चला गया क्योंकि पानी इवेपोरेट हो गया. वाटर को जब हीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर चला जाएगा तो इन कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स का कलर वाइट हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएंगे. बट लास्ट में जब हमने पानी ऐड किया तो अगेन दे गॉट दैट ब्लू कलर. सो दैट शोज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मतलब जब इन सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं तो वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में से, और जब इन वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स उनके क्रिस्टल्स में होते हैं एंड दैट डोंट मेक दैट सॉल्ट वेट. ये पानी है बट फिर भी ये सॉल्ट गीला नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ड्राई क्योंकि इसके क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो आ गया है. ये वाटर कम्प्लीटली उसके मॉलिक्यूल्स में इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स दैट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इन दैट. ओके,
सिर्फ कॉपर सल्फेट ही नहीं, बहुत सारे और भी ऐसे कंपाउंड हैं। एंड इवन यू कैन ट्राई एट होम ऑल्सो वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो every molecule of washing soda is having 10 molecules of water in it। एंड ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हुए भी हमारा ये वॉशिंग सोडा होता है पाउडर फॉर्म में, completely dry, appears to be completely dry but still it is having 10 water molecules in it। Similarly एक और कंपाउंड होता है gypsum, that is calcium sulfate dot 2H2। This is known as gypsum। तो gypsum में भी 2 water molecules हैं as water of crystallization। Okay, all these examples are given in your book। One extra example I would like to tell you is about alum। alum means फिटकरी। आप सबने फिटकरी देखी होगी। फिटकरी completely solid होती है, it's completely solid and it doesn't look moist at all। तो फिटकरी कभी हाथ में लेके देखना, आपको लगेगा भी नहीं कि इसमें पानी है, बट स्टिल every molecule of this alum is having 24 water molecules in it। हर एक एलम के मॉलिक्यूल के साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हैं? 24 water molecules are associated, yet it's completely dry। So this water present in the crystals of any salt that are known as water of crystallization। Okay, I hope you are clear with that। तो अब हम दो ऐसे सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं जिन दोनों ही सॉल्ट्स में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है। ओके, सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट वॉशिंग सोडा। द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। In the previous video we have seen जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, heated, then what is formed is Na2CO3 plus carbon dioxide plus water। जब इस Na2CO3 को हम लीव कर दें तो it will absorb the water from the atmosphere and it will form this Na2CO3.10H2O। क्रिस्टलाइज हो जाएगा और फॉर्म करेगा वॉशिंग सोडा, दैट इज हैविंग द फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। तो दैट इज हाउ दिस वॉशिंग सोडा इज फॉर्म्ड। ओके, नाउ दिस वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा? ये Na2CO3 will combine with 10 water molecules and that will form Na2CO3.10H2O। हमेशा डॉट बना के लिखा जाता है, दैट मीन्स एवरी मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 इज एसोसिएटेड विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हर एक Na2CO3 मॉलिक्यूल के साथ में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। ओके, सो दैट इज हाउ दिस वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड। नाउ कमिंग टू द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। नाम से ही पता चल रहा है क्लीनिंग एजेंट है, वॉशिंग के लिए काम आएगा, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब आप बोलोगे मैम फिर से पेपर इंडस्ट्री में क्यों यूज़ कर रहे हैं? पेपर इंडस्ट्री में क्लीनिंग करेंगे, वुड पल्प की हम पहले क्लीनिंग करेंगे और उसको बाद में ब्लीचिंग भी करेंगे, तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर भी यूज़ करेंगे इन इंडस्ट्रीज़ में एंड वॉशिंग सोडा भी यूज़ करेंगे इन इंडस्ट्रीज़ में फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। ठीक है, तो पहले उसको क्लीन कर देंगे, फिर जो स्टेन्स रह जाएंगे उसको रिमूव करने के लिए सेकेंड स्टेप में हमने देखा था कि ब्लीचिंग पाउडर भी यूज़ करते हैं पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑफ द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। इसके अलावा आप सब जानते हो वॉशिंग सोडा है तो एट होम फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस क्लीनिंग एजेंट की तरह इसको यूज़ करा जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट। उसके अलावा काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में भी इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करा जाता है। वन सच थिंग इज़ बोरैक्स। बोरैक्स के प्रिपरेशन के लिए, बोरैक्स क्या होता है? एक एंटीसेप्टिक होता है बोरैक्स, एंड दिस बोरैक्स इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा को यूज़ करके हम बोरैक्स का प्रिपरेशन भी करते हैं। ओके, एक और यूज़ है इस वॉशिंग सोडा का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करता है। मतलब अगर हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स हैं,
जिसकी वजह से अगर आप सोप यूज़ करोगे, आप घर पे कपड़े धो रहे हो और अगर हार्ड वाटर है तो यू विल फाइंड कि उसमें झाग नहीं आ रहे, दैट इज़ नॉट गिविंग एनी लेदर। तो ऐसे कंडीशन में अगर उसमें वॉशिंग सोडा के साथ में यूज़ किया जाए तो वो पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। तो अगर साबुन से झाग नहीं आ रहे, इट्स नॉट गिविंग लेदर, दैट मीन्स दैट द वाटर इज हार्ड, इट्स हैविंग मैनी मिनरल्स जो हमारे साबुन को, सोप को वर्क नहीं करने दे रहे। एंड इन दैट केस वॉशिंग सोडा कैन हेल्प अस टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर. So that are all the uses of washing soda. Okay, so initially we have seen the preparation, the formula. Remember that formula is Na2CO3.10H2O. 10H2O इसमें water of crystallization है. कैसे प्रिपेयर करेंगे? बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा. इस ही सोडियम कार्बोनेट को हम छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेयर में से ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा एंड दैट विल be giving us this washing soda, that is Na2CO3.10H2O. फिर इसके हमने यूजेस देखे थे. यूजेस हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट एंड हाउस होल्ड पर्पस, उसके अलावा एज अ क्लीनिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, ग्लास फैक्ट्रीज एंड इवन इन लॉन्ड्रीज, सब जगह यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वी हैव सीन दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर. परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करना है तो इसके लिए भी हमारा ये वॉशिंग सोडा हेल्पफुल है. वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देगा और वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना देगा. ओके, सो दैट वर ऑल एंड वी हैव सीन दैट इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स. So these are all the uses of washing soda and we are done with washing soda and just we are now left with our last compound, that is plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं. दैट इज CaSO4.12H2O. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. CaSO4.12H2O जिसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमीहाइड्रेट मीन्स आधा वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया कैसे जाता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. तो सबसे पहले देखते हैं इसको बनाया कैसे जाता है. हमारे पास रॉक्स अकर करते हैं जिप्सम के. जिप्सम अकर्स इन नेचर एज रॉक्स और उस जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O. ठीक है, जब इस जिप्सम को हम हीट करेंगे तो उसमें से पानी थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाएगा. अगर पानी को इवेपोरेट करना है तो कितने टेम्परेचर पे हीट करना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है. उसी को बुक में मेंशन है केल्विन स्केल में, तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 373 केल्विन. इजी टू रिमेंबर, कितने टेम्परेचर पे हीट करना है? 373 केल्विन, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. जब हम 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल कुछ रिमूव हो जाएंगे एंड विल गेट आवर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज CaSO4.12H2O. कितना वाटर रिमूव हुआ होगा? 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड आउट. तो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड वी विल गेट CaSO4.12H2O. वन थिंग दैट विल कम टू योर माइंड कि मैम मॉलिक्यूल्स तो इंडिविजिबल होता है, ऐसे आप हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे ले सकते हो? तो हाफ मॉलिक्यूल अपन बस लिखते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता. एक्चुअली क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल है और उसके साथ में 2 कैल्शियम सल्फेट अटैच्ड हैं. CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं टू अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, और इसलिए अगर हम एक के साथ में बोलें तो क्या आएगा? CaSO4 के साथ में आधा वाटर मॉलिक्यूल है, बट प्रैक्टिकली जो अकर करता है दैट इज एक्चुअली CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स दैट आर अटैच्ड टू 1 वाटर मॉलिक्यूल. ओके, बट फॉर ईज ऑफ राइटिंग वी राइट इट लाइक दिस, ताकि हम एक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली नेचर में जो एग्जिस्ट करेगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ओके, अब
ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है पाउडर फॉर्म में और इसे यूज़ करा जाता है फॉर मेकिंग टॉयज़, फॉर मेकिंग स्टैचूज़ एंड फॉर रिपेयरिंग द ब्रोकन बोन्स। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये पाउडर फॉर्म में होता है। तो क्या किया जाता है, अगर इसको वाटर के साथ में मिक्स करा जाए तो इसमें ये कोई भी शेप ले गया। ओके, इट कैन बी गिवन एनी शेप and that is why it is used for making statues, for toys and also for making decorative items and as well as for repairing the fractured bone. अब हमें मान लो बोन फ्रैक्चर्ड है यहाँ पर और हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो हम क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि पाउडर फॉर्म में है उसको गीला करेंगे तो दैट विल बी जस्ट बाइंडिंग विथ वाटर, एक डो जैसा प्रिपेयर हो जाएगा। उसको हम अप्लाई कर देंगे फ्रैक्चर्ड बोन के अराउंड। ओके, फ्रैक्चर्ड बोन के अराउंड अप्लाई कर दिया। जब वो ड्राई होगा तो वो जो भी आपने उसको शेप दिया है बिफोर ड्राइंग, जब डो के फॉर्म में था, तो जो भी आपने उसको शेप दिया वो उसमें ही रिटेन रह लेगा, उसी शेप को वो मेंटेन कर लेगा। तो अगर आपकी फ्रैक्चर्ड बोन है, आपको स्टेबल करना है उसको ताकि वो बोन मूव ना हो, क्योंकि बोन मूव होगी तो रिपेयर नहीं हो पाएगी, तो वो हिले नहीं, इसलिए आपने उसके चारों तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया। अब जैसे ही वो ड्राई होगा तो वो जिस भी शेप में आपने उसको सेट किया था वो वैसा का वैसा रह जाएगा। एंड जब वो सेट होगा तो उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे, सिर्फ 2। तो कैसे होगा, CaSO4 हाफ H2O आपने लिया, वो पानी के साथ में रिएक्ट करेगा और फॉर्म कर लेगा जिप्सम। और ये जिप्सम हमारे जो प्लास्टर हमने यूज़ किया है या स्टैचू बनाया है तो उसमें क्या है, दैट इज़ हैविंग जिप्सम, नॉट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करके अगेन हमने क्या सेट कर लिया है, जिप्सम। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते कैसे हैं, जिप्सम लिया, नेचर में नेचुरली अकरिंग है, रॉक्स के फॉर्म में है, उसको हीट करा 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज 373 केल्विन पे, हमें मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ठीक है, अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप स्टोर कैसे करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। आपको इसको स्टोर करना है तो दैट हैज़ टू बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर नहीं किया तो ये एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा और जब आप अपना बॉक्स खोलोगे फ्रैक्चर्ड बोन पे अप्लाई करने के लिए या स्टैचू बनाने के लिए, देन यू विल फाइंड दैट इज़ अगेन इन द रॉक फॉर्म, वापस रॉक के फॉर्म में आ गया और आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जब इसको स्टोर करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, दैट नीड्स टू बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स ताकि ये एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं करे। जब आपको इसको यूज़ करना है, पाउडर निकालो, पानी में डिज़ोल्व करो, पानी में प्रिपेयर करो इसका डो और इसको जो भी शेप आप देना चाहते हो आप दे दो। तो अगर आप टॉय बनाना चाहते हो, स्टैचू बनाना चाहते हो, सीलिंग्स पे कोई डिज़ाइन बनाने के लिए भी इसको यूज़ करा जाता है, तो ऐसा कोई भी डिज़ाइन, कोई भी शेप देना है उसको दे दो एंड जब वो ड्राई होगा दैट शेप विल बी मेंटेन, वो फिक्स हो जाएगा उसी पर्टिकुलर शेप में। ओके, सो दैट इज़ हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ प्रोड्यूस्ड। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये जिप्सम जो अकर किया था, सबसे पहले हमको जो मिला था दैट वाज इन पेरिस, तो इसलिए इसका नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, so that is all about this chapter. We have completed with acids, bases and salts entire chapter. I hope you are enjoying to study science along with me. Do let me know in the comment section. Your comments are really precious for me. That's all for today. Keep on studying science and score well in your exams, as well as relate everything in your daily life. Just develop that habit. It will be really interesting for you all. That's all for today. Good day, everyone. Take care of yourselves.